Hello students, good morning. Today we are going to learn the very important topic of English, that is tenses. For some student it is equivalent to tension, but let us try to make it easy so that we have a good hold on it, right? Tenses. So if I ask you या आपसे कोई पूछता है बेटा tense क्या है? Tense is sense of time. Its meaning is hidden itself in the name of tenses means sense of time. So we divided time into three main parts: present, past, and future. Yeah, past, present, and future. It again has four different forms, right? Present, past, and future बेटा इसके टाइप है और ये इनके फॉर्म्स हैं. सिंपल, जिसको हम इंडेफिनेट भी बोलते हैं, सिंपल एंड इंडेफिनेट वन. सेकेंड वी हैव प्रोग्रेसिव, और जिसका दूसरा नाम आपके सामने कॉन्टिन्यूस के तौर पे भी आता है, प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूस. थर्ड वी हैव परफेक्ट, एंड देन वी हैव परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. वी हैव गिवन सेट ऑफ रूल्स और स्ट्रक्चर्स फॉर दीज टेंसेस. बेटा हमारे ग्रामर में इनके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, अदरवाइज हम गलत सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे और उसके बिना हमारा टेंस जो है वो सही नहीं माना जाता, राइट? सो इन टोटल वी हैव 12 टेंसेस. तो बेसिकली हमने 12 टेंसेस को पढ़ना है. टेंसेस को हिंदी में बेटे काल भी बोलते हैं. प्रेजेंट, past, future, simple present, present progressive, present perfect, present perfect continuous. Similarly, simple past, past progressive or continuous, past perfect continuous. Simple future, future indefinite भी बोलेंगे, future progressive, future perfect continuous. So let us learn it one by one with rules, structures and usage so that we can learn it better way, right? Let us start with simple present tense. So simple present tense structure is subject plus V1 plus object. तो बेटा सबसे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है, बिकॉज हम ऑल द टाइम वी मेक minor mistakes while using verbs with subjects. So which subject takes what verb? Let us learn it. For example, I, we, you, they plus V1 plus object. First person I, plural we, second person you, third person they, plural. बेटा इन सबके साथ हमारा वर्ब का V1 फॉर्म जाएगा, ओनली V1 फॉर्म. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. आई प्ले क्रिकेट डेली. आई प्ले फुटबॉल डेली. राइट? आई गो टू स्कूल डेली. वी प्ले टुगेदर डेली. यू come to my ground every day. They play a game every day. So simple present tense का जो स्ट्रक्चर है बेटा, subject plus V1 plus object. This is the structure और इसके साथ हमेशा V1 फॉर्म जाएगा with these subjects. Now we have third person singular subject like he, she, it. जब हमारे पास when we have third person singular, उनके साथ हमने कौन सा वर्ब यूज करना है? एस ई एस आई ई एस. हमने जब वर्ब के 6 फॉर्म्स की पढ़ाई की थी बेटे, when we make different forms of verbs, first form that is base form and then we have SES form. तो इसके साथ हमेशा SES फॉर्म जाएगा. verb SES form plus object. This is the structure for he, she, it. For example, हमने बोला I play football daily, लेकिन जब आपने ये बात किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज करनी है, वहां पे आप इसके साथ प्ले यूज नहीं कर सकते. एट दैट टाइम यू कैन यूज प्लेस. आपने क्या यूज करना है? प्लेस. जैसे ही प्लेस, यहाँ पे प्ले नहीं आएगा, यहाँ पे प्लेज आएगा. फुटबॉल
daily. He eats chocolate daily. He goes to school every day. He goes to school every day. He go to school नहीं होगा. I go to school, you go to school, and he goes to school, right? So this is the basic difference in third person singular and first subject. Structure of tenses is important because we have to focus on the basic structure. अगर हम स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देते बेटा तो हमारी जो राइट सेंटेंस फॉर्मेशन है वो गलत हो सकती है और उससे हमारे मार्क्स जो है वो कटेंगे, राइट? तो ही प्लेज फुटबॉल. सो देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा. सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली हमारे पास V1 फॉर्म ऑफ वर्ब है. सो हाउ टू फॉर्म निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इसकी बात भी हमारी पहले हो चुकी है. एक बार फिर से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. वी यूज और वी टेक डू एंड डज एज अ हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. हम किसका यूज करेंगे? डू का एंड डज का. कैसे? आई गो टू स्कूल एवरी डे. इफ वी हैव टू फ्रेम निगेटिव सेंटेंस हम क्या बोलेंगे? आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे. आई डू नॉट, हम डू का यूज कर रहे हैं. सिमिलरली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे ही डज नॉट प्ले. यहाँ पे बेटे आपका एस फॉर्म जो है वो डू के साथ चला जाता है तो यहाँ पे डज फॉर्म करेगा और ये जो वी प्ले है ये अकेला रह जाएगा. ये हम एस फॉर्म के साथ यूज नहीं करेंगे. ही डज नॉट प्ले फुटबॉल डेली. So let us learn and revise the structure of simple present tense. Subject V1 object, but there is a condition. If our subject is first person and second person plural, then we use V1. But if our subject is third person singular, he, she, it, then the verb is used SES with base form. Similarly, do and does has been used with to form negative and interrogative in simple present tense. Right? Now we have uses of simple present tense. Uses of simple present tense. When we use simple present tense, the action that is permanent in nature, our routine, हमारी डेली के काम जो होते हैं, जो हम रोज रोज करेंगे, एवरीडे करेंगे, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट. लाइक रूटीन का काम बोले, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई टीच माई स्टूडेंट्स एवरी डे, आई गो फॉर जॉब एवरी डे. दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. लेकिन अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये वाले जो हमारे परमानेंट एक्शंस हैं या जो हमारे फैक्ट्स हैं, रूटीन है, ये हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में याद करते हैं, राइट? सो लेट अस मेक सम मोर एग्जांपल्स at your home with simple present tense and make it better learning, right? That is enough for today. Thank you.